Okay. So demand deposit means our surplus or saving we deposit inside the bank. Okay. Or bank, how to bank process this demand deposit by the different bank. We have discussed already कि 15% kept by the bank. बैंक अपने पास 15% रखते हैं 1/5 and rest of may be generated in the form of the loan or credit. Okay. So this is known as the demand deposit. अब डिपॉजिट तो व्हाट वी आर डिपॉजिटिंग इनसाइड द बैंक, जो हमारा अकाउंट है, दैट इज नोन एज द डिपॉजिट. अब व्हाट इज द डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट मींस व्हेन वी नीड द मनी फॉर आवर यूज, व्हेन वी रिक्वायर मनी और इन, तो वी कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ चेक, we can withdraw that by using of the different apps. So this is known as the demand deposit. This is known as the demand deposit. I am repeating the demand deposit. The other demand deposit means that the deposit in the bank accounts or can withdraw on the demand. When we need the demand, we can withdraw this deposit, or this deposit are known as the demand deposit. Yani those we have deposit inside the bank, we can withdraw during डिमांड, दैट इज नोन एज द डिमांड डिपॉजिट. इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. ओके. तो दिस वाज द पॉइंट डिमांड डिपॉजिट. why I am repeating there all the points, because suppose any one point may be stripped down by me, so we can revise here. Okay. कोई point मुझसे strip हो गया. Okay. check to you know very well. Check is the also one form we can. ये check is the paper or instructing the bank to pay the specific amount from the person account to the person in whose name is mentioned on the check. So that is the definition of check. Check is the paper which specify the debt details in from one account. Suppose it is my bank account check. जैसे suppose मेरा bank account check है like this, and I am giving to the any one person, so it is the responsibility of bank. Those amount I have mentioned here. Suppose I have mentioned 10,000 rupees. So 10,000 rupees will be deducted from my account and deposit the on whom person those names mentioned on the check. So this is the check. Okay. Simply you know very well what is the check. Check is the paper entrusting the bank to pay the specific amount from the person account who held the account in the bank and whose name the check has been issued. जिसके नेम चेक इशू किया गया है उसके नेम. जैसे यू नो योर फादर आल्सो डिपॉजिट द चेक इनसाइड द बिरला शिक्षा के अंदर, मेंशन द थ्रू फॉर योर फीस like in the form of challan or like this. So this is known as the check. These are related to your daily life. ये चैप्टर ऐसा बेटा, it is concerned with your daily life. Check we have discussed. अब what are the loan activity? So we have discussed already about the loan activity, credit form, credit loan. So loan activity we have discussed in this. तो how do we take the loan? तो अब हम discuss करेंगे formal informal. We can take the loan from the two agencies. One is the formal or another one informal. So these are the two agencies, formal, informal agencies. Okay. So loan activities we have studied the two case study given in your book. One is concerned with the Salim or another one concerned with the Swapna. Up that is the risk when we take the loan for our to earning means the to increase our earning sources. So many times it is the risk. Suppose both have taken the loan from the bank through the loan activities. One was the Salim or Swapna. Salim invest on the agriculture sectors. There is huge profit and he is earning his income. Okay. उसने अपने इनकम को बढ़ाया इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट के द्वारा. See the same cases, she has taken the loan from the same agency. Okay. But when his her crop was failure, destroy, उसकी crop failure हो गई, destroy हो गई, she unable to pay the installment of the bank. Then what happens? Later on, she has sold
हर लैंड, उसको अपनी लैंड सोल्व करनी पड़ी। तो दिस वाज द डिफरेंट केस स्टडी इन द क्रेडिट सेक्टर। ये क्रेडिट और लोन में डिफरेंट केस स्टडी कि एक को लोन से कैसे प्रॉफिट हुआ और दूसरे को लोन से कैसे लॉस हुआ। तो it depend on the risk, what risk we are taking here. Suppose we are investing on agriculture sector, so this is the completely risk. Why it is the agriculture sector is too much risky here? Because from onset or from the harvesting, with the sowing to till harvesting, it completely depend on the weather, or weather means it depend on weather. Suppose like how do it affected the investment inside the agriculture sector? Any one person who has invest on the agriculture sector, or he has grow the opium crop. Opium, you know dear opium crop? Opium, you know? Apim. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So he has grown the opium crop or taken the loan from the government. Then what happens? So you know, for opium crop there is the terms and condition by the central government. Central government के अंदर we can grow this crop, either than no. Central government registered or maybe give the permission कि central government maybe allotted the land on particular this, on that area we can grow this crop only. Then decided by the central government. अब in this crop government की term and condition, there are lot of term and condition, लेकिन जो सबसे important है वो मैं आपको बता रहा हूँ which one condition, okay? इसकी condition है opium crop की. If opium crop in this shape like this, it is like in this shape. So how do they harvest this crop? They make a cut in this. इसमें कट लगाते हैं और इससे जो व्हाइट मिल्क होता है दे कलेक्ट ऑन द लेदर जार और लेदर और मे बी मेटेलिक जिस पे भी लेते हैं, दे कलेक्ट ऑन दैट इज मिल्क जो होता है दैट इज द ओपियम, वो ओपियम होता है। तो गवर्नमेंट की कंडीशन है कि वन अगर आपने एक टाइम सपोज योर क्रॉप मे बी फेलियर और व्हेन यू फील इट इज नॉट अप टू द मार्क, आपको लॉस हो जाएगा, तो यू कैन अपील टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको कोई लॉस नहीं होगा, गवर्नमेंट में भी डिस्ट्रॉय दिस क्रॉप, बट वो कब तक कर सकती है? जब तक आपने इसको एज ए फर्स्ट टाइम तक भी इसका मिल्क कलेक्ट नहीं किया हो, यानी आप सिंगल टाइम भी मिल्क कलेक्ट नहीं करोगे इसमें से तब। बट ए सिंगल टाइम यू हैव कलेक्टेड मिल्क फ्रॉम दैट ओपियम क्रॉप, एक बार आपने मिल्क कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट कांट डिस्ट्रॉय दिस क्रॉप, फिर गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, फिर आपको जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी हुआ है इट डिपेंड ऑन यू, ओके। अब सपोज एनीवन फार्मर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन्वेस्ट किया, अच्छी क्रॉप है और फर्स्ट टाइम आई हैव कलेक्टेड द मिल्क, मैंने फर्स्ट टाइम मिल्क कलेक्ट कर लिया इसमें से, ओके। ये 2 और 3 टाइम होता है, आई डोंट नो डिटेल्स, मुझे इतनी डिटेल्स तो नहीं पता, बट जो भी एवरेज इंफॉर्मेशन आई हो आई एम शेयरिंग। तो वन टाइम फार्मर हैज कलेक्टेड द मिल्क फ्रॉम द ऑफ एन एरिया, आधे एरिया से उसने कलेक्ट कर लिया मिल्क, ओके बेटा। नेक्स्ट डे रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, हेवी रेनफॉल ऑन दैट क्रॉप, ओके, इन चित्तौड़, देन व्हाट हैपेंस? यानी फार्मर कांट डिस्ट्रॉय दिस क्रॉप, फार्मर अब इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता क्योंकि सिंगल टाइम मिल्क कलेक्ट कर लिया उसने, देन कितना लॉस हुआ उसको। तो इट इज एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंप्लीटली ऑन रिस्क, ये बहुत बड़ी रिस्क होती है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि वेदर पे डिपेंड करता है। इट इज द जस्ट वन एग्जांपल कंसर्न विद द ओपियम, टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट, टेक द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड, टेक द एग्जांपल ऑफ सोयाबीन। सपोज फार्मर्स हैज हार्वेस्टेड इस क्रॉप और उस क्रॉप फील्ड में रखी हुई है और रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, देन व्हाट हैपन? इंसेक्ट्स लग गए। टुडे गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा इनपुट्स बना दिए टुडे, लाइक ए फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है, बट आफ्टर देन इंसेक्ट्स कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के और मे बी द दोज हु आर द रिसर्च सेंटर
they can't control that. So this may be happens in agriculture sector. That's why I am giving the example of Salim and Swapna. It is mentioned in your book. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी कभी इन्वेस्ट लॉस होता है. नॉट इन एग्रीकल्चर, इट मे बी हैपेंस एनीवेयर. सपोज एनी वन पर्सन हैज टेकन द लोन फॉर ए बिजनेस और ड्यू टू द सम कंडीशन उसको लॉस हो गया, ही अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन मार्केट. अभी जैसे सपोज मैंने यस्टरडे आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ क्रैकर्स. किसी ने क्रैकर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट गवर्नमेंट हैज बैन द क्रैकर्स इनसाइड द डिफरेंट स्टेट्स. बहुत से स्टेट में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया दिवाली पे. तो व्हाट हैपेंस विद देम? तो दिस हैपेंस मेनी टाइम. लॉस भी होता है. बिजनेस इज डिपेंड ऑन द रिस्क. सम टाइम मे बी लॉस, सम टाइम मे बी प्रॉफिट. ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड द टू डिफरेंट केस स्टडी. वन इज स्वप्ना, अनदर वन इज द सलीम. ओके, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट वी हैव डिस्कस्ड. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? वी व्हेन वी टेक द लोन फ्रॉम द बैंक ना बेटा, तो वी डिपॉजिट द सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी को कोलेटरल बोला जाता है. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. कोलेटरल है बट हम कोलेटरल बोल देते हैं बहुत बार. वी कैन से इन सिंपल वर्ड दैट इज द असेट. यानी जो भी आपके पास है वी कैन डिपॉजिट इनसाइड द बैंक. और बैंक के लिए क्या है? इट इज द सिक्योरिटी. कि इफ यू अनएबल टू पे तो यू कीप योर सिक्योरिटी इनसाइड द बैंक. अब जैसे सपोज यू आर टेकिंग द लोन ऑन द 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो 4 व्हीलर का जो होता है एनओसी. एनओसी होता है. एनओसी मींस नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ओके, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी होती है. तो बैंक क्या करेगा? आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इट विल बी कीप बाय द बैंक. इफ यू टेकन द लोन फॉर ए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो वो असेट हो गया आपके. इफ यू वांट टू टेक ए लोन ऑन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस और लाइक, तो हाउस के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, इट विल कीप बाय द बैंक. ये भी एक हाउस, एक एसेट हो गया. तो समटाइम व्हेन वी टेक द लोन वी डिपॉजिट गोल्ड इनसाइड द बैंक, दैट इज द एसेट. यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज, फिक्स प्रॉपर्टीज, और दोस मे बी व्हेन वी वांट टू टेक ए लोन और वी कैन कीप इनसाइड द बैंक, दैट इज नोन एज द कोलेस्ट्रॉल और सिक्योरिटी. उसको कोलेस्ट्रॉल और सिक्योरिटी बोला जाता है जब किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और उसको हम रखते हैं. इन केस ऑफ वी अनएबल टू पे द सच लोन, तो गवर्नमेंट मींस बैंक, नॉट अ गवर्नमेंट, बैंक में बी take it from us. Okay, so simple definition of the collateral security is it is the asset that borrowers who want to take a loan on, such as the land, building, vehicle, livestock, deposit with the bank, can keep inside the bank and use this as the guarantee. Okay, I am giving the guarantee for that if I am unable to pay that. तो लेंडर अंटिल द लोन रिपेड, ये कब तक बैंक के पास रहेगा? तब तक लोन वी अनेबल टू पे, या रिपेड नहीं हो जाता पूरा. ओके, इफ द बोरोवर्स फेल टू रिपे द लोन, इफ द बोरोवर्स हु हैज टेकन द लोन हु फेल टू द रिपे द लोन, द लेंडर हैज टू राइट सेल द एसेट और कोलेटरल ऑब्टेन पेमेंट. तो ये उसको राइट्स होता है बैंक को कि इसको सेल करके वो अपनी इंस्टॉलमेंट और मे बी व्हाट अमाउंट ही और शी हैज गिवन दे कैन रिकवर देयर. ओके, दैट इज नोन एज द एसेट. ओके, जस्ट चलो 10 मिनट्स आ गए, अभी 10 मिनट्स बचे हैं हमारे. तो दिस इज नोन एज द सिक्योरिटी. अब those points we have discussed. If you have any doubt you may be asked. Later on we will start the formal and informal sectors of loan. Have any doubt here? No, sir. Okay, dear. No. If you have any doubt, you may be message to me. Message कर सकते हो. Today we are going to discuss about the formal and informal. So formal sectors of loan. Formals we can say in simple word. These are the registered sector where we can trust on that, like a bank and cooperative sector. These are the loans from the bank and cooperative
The Reserve Bank of India is supervised them. Bank and cooperative sector. और वो supervised at RBI. Sorry, RBI के टॉप पे आएगा. तो वो supervised by this cooperative sectors or bank. It is supervised by the RBI sectors or the Reserve Bank of India supervise the functions of formal sources of loan. Bank have to submit information to RBI. They will submit the information to the RBI and RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate they are taking. It is decided by the RBI. कि ये क्या interest rate लेंगे? Interest rate on saving, on loan, it will be decided by the bank. तो you know sometimes bank interest rate को change करता है. वो किस condition में से? It is not in your syllabus, but discuss कर लेते हैं. बेटा there are two critical situation in economics, hyperinflation और deflation. Okay? तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे hyperinflation, deflation. In one condition, currency value डिक्रीज होती है और इन अनदर फॉर्म करेंसी वैल्यू आइडियस इंक्रीज होती है. तो व्हेन अ करेंसी वैल्यू इंक्रीज होगी इन वन कंडीशन करेंसी वैल्यू डिक्रीज होती है. तो आई एम गिविंग ओनली वन एग्जांपल. जरूरी नहीं है कि इसी थ्रू से गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है. दिस आर द डिफरेंट वे. इसके अलावा भी दूसरे भी तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हाइपर इन्फ्लेशन को एंड डिफ्लेशन को. ओके. तो करेंसी वैल्यू डिक्रीज होना देन मींस व्हाट? करेंसी वैल्यू डिक्रीज होना मींस द प्रोडक्ट प्राइसेस राइज अप होना. अर्लियर टाइम अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीस का आ रहा था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 और इसकी वैल्यू हो गई 110 इन द मंथ ऑफ जुलाई 21. ओके. तो इट इज नोन एज द करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई. दैट इज नोन एज द करेंसी वैल्यू डिक्रीज होना. ओके. इन सच कंडीशन करेंसी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. तो बैंक क्या करेगा? करेंसी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. इट मींस पब्लिक के पास वैल्यू कम है मनी की. वैल्यू कम है तो व्हाट हैपेंस कि वो परचेस नहीं करेंगे. इन फर्स्ट कंडीशन दे विल नॉट परचेस द एनी प्रोडक्ट क्योंकि वैल्यू कम है. सपोज अर्ली टाइम जो मेरी सैलरी में जितने प्रोडक्ट में परचेस कर सकता था अब उसके कम कर रहा हूं. वैल्यू कम हो गई करेंसी की. देन व्हाट हैपेंस? आई विल नॉट परचेस एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट. जब आप मार्केट से परचेस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करोगे बेटा, when we are unable to purchase the product then how the industries will run? अगर जो इंडस्ट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट है वो सेल कैसे होंगे अगर कोई भी परचेस नहीं करेगा? जैसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई भी गुड्स है, एनीथिंग, अगर उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी. डिमांड क्यों नहीं है? भाई डिमांड क्योंकि परचेसिंग पावर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. मेरी जो सैलरी में जितना आता था उससे कम आ रहा है तो माय परचेसिंग पावर इज डिक्रीज. दैट्स व्हाई डिमांड कम हो गई. मैं इसको प्रोडक्ट को परचेस नहीं करूंगा तो हाउ टू इंडस्ट्रीज विल रन? इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी? और जब इंडस्ट्रीज रन नहीं कर पाएगी तो हाउ टू देयर ओनर्स विल गिव द सैलरी और वेजेस टू देयर एम्प्लॉयर्स? जब उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो वो अपने लोगों को सैलरी और वेजेस कैसे दे पाएंगे? जब सैलरी और वेजेस नहीं दे पाएंगे तो दे विल बी रिड्यूस द एम्प्लॉयर्स. तो वो क्या करेंगे? एम्प्लॉयर्स को रिड्यूस करेंगे. जब एम्प्लॉयर्स रिड्यूस होंगे तो इन इकोनॉमिकल सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. जैसे सिंपल सा इन स्कूल व्हाट हैपन? देयर आर मेनी स्कूल, देयर ओनर्स, प्राइवेट स्कूल, देयर ओनर्स अनएबल टू पे द सैलरी टू देयर टीचर्स. कितने ऐसे स्कूल है? लीव द एग्जांपल ऑफ चित्तौड़. थिंक अबाउट आउटसाइड. ओके. जैसे देयर आर मेनी स्कूल, देयर ओनर्स अनएबल टू पे द सैलरी टू देयर टीचर्स बिकॉज they are not getting the fees from the children. Okay. वो बच्चों से फीस नहीं ले पा रहे तो उनको सैलरी नहीं दे पा रहे. जब वो सैलरी नहीं देंगे तो they will reduce the teacher और employers. वो टीचरों को
कर देंगे भाई 5 मंथ के लिए आप घर बैठे, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। देन हाउ टू टीचर विल सर्वाइव, टीचर कैसे सर्वाइव करेंगे? तो एडिट हैपेंस इन इंडस्ट्रीज, ऐसा का ऐसा इंडस्ट्रीज में भी होगा बेटा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सपोज हमारे कोई भी रिलेटिव है या मैं जॉब कर रहा हूँ ऐसी फैक्ट्री या ओनर्स में, हाउ टू आई फेस प्रॉब्लम, मैं कितनी प्रॉब्लम फेस करूंगा? तो गवर्नमेंट का क्या काम है? सबको बैलेंस करना, डिमांड को भी रखना है और इनको अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होने देना है। तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, आरबीआई क्या करेगा इसमें? आरबीआई क्या करेगा बेटा? इंटरेस्ट रेट जो है, IR मींस इंटरेस्ट रेट, इट इज नॉट इन योर सिलेबस में, पहले कर रहा हूं, सिलेबस में नहीं। इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई, इट विल बी डिक्रीज बाय द आरबीआई। सपोज अर्ली टाइम में लोन पे इंटरेस्ट रेट 9% थी, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन जो 9% थी, इट विल बी डिक्रीज बाय द आरबीआई। ये इंटरेस्ट रेट कितनी कर देगी आरबीआई? फॉर एग्जांपल 5%। तो 5% पे क्या होगा? एवरीवन रेडी टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक, हर कोई बैंक से लोन ले लेगा। जब वो लोन लेगा देन व्हाट हैपेंस, उसकी पॉकेट में पैसा आएगा। जब पॉकेट में पैसा होगा तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, डिमांड डेवलप होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो परचेसिंग पावर विल बी इंक्रीज। तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी तो फैक्ट्रियों का जो बनने वाला प्रोडक्ट है इट विल बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वन वे थ्रू द आरबीआई कैन डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। मैं टाइम देख लूं, आपकी दूसरी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट और लूंगा बेटा, फिर आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करिए। ओके, अब अनदर वन एग्जांपल जिसमें इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज में क्या होगा? जो फैक्ट्रीज है इनसे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, लोग प्रोडक्ट को डिमांड इंक्रीज होगी। इन सेकंड एग्जांपल, तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस? इन दिस कंडीशन डिमांड इंक्रीज होगी तो बहुत ज्यादा सप्लाई होंगे, इतने फैक्ट्रीज में बन नहीं पाएंगे, तो लोगों के पास जो मनी है ना उसको गवर्नमेंट डिक्रीज करेगी। मतलब बैंक में कैसे है ये पैसा? तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। पहले अगर सपोज ये सेविंग पे 4% दे रही थी गवर्नमेंट, अपने को डिपॉजिट करने पे 4% मिल रहा था, गवर्नमेंट इसको 7% कर देगी। तो हम क्या सोचेंगे? इट बेटर देन यार, परचेस करने से तो बढ़िया कि बैंक में डिपॉजिट करो, उससे क्या होगा? हमारे को इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी। इंटरेस्ट करने से क्या होगा? ये पैसा कहां चला जाएगा? इनसाइड द बैंक। जब ये पैसा बैंक में जाएगा तो डिमांड विल बी बैलेंस। So this is the topic concerned with our daily life. That's why I will explain it. Or tomorrow we will continue with the formal and informal sector. Sorry dear for your trouble. Have a good day. Thank you. Okay, better. Thank you, sir.